Good afternoon, everyone. Right now, I hope you all are able to see my screen. This pen tab, black screen is being shared with you all. Okay, so today we are starting with the income tax paper, right? So when we talk about this income tax paper, so this particular paper is about the income earned by the assessees. So when we talk about, we start this particular. Ma'am, nothing is visible from your side, ma'am. Your desktop. This black screen is visible. Yes, ma'am. This is clear, visible. Yeah, ma'am. Okay, But ma'am, I was just about to start writing. Okay, so okay, so when we talk about I'm not the able. paper, No, ma'am, I'm not able to see your board, ma'am. I'm just writing. This is the black screen. So we are starting with the income नहीं मैम, tax paper नहीं है। today. नहीं, आप इसको मिनिमाइज करो पहले मैम। ये जो आपने टीम्स वाला ओपन किया हुआ है ना, इसको मिनिमाइज करो मैम। Okay, is it clear now? Is it coming? नो मैम। One second. Where is my team tab now? फर्स्ट यू टर्न ऑफ योर मैम स्क्रीन, इट्स लाइक अपनी स्क्रीन शेयर जो आपने की है उसे क्लोज कीजिए। Okay, one second. Okay. Yes, Now ma'am. shall I share it Yeah. again? Yes, ma'am. Okay. Right now we have, ma'am, 224 students. Okay, good. So again, I have to go here. Ma'am, it is showing only a two Yes. person. Like it's like a Teams desktop, ma'am. Okay. I'm not able to see your dash, like a blackboard. Okay. One second. Uh, Give me a second. I will switch this screen to the my next screen and yeah. Okay, you have two monitors. Yeah, I have two monitors, so I have shifted it now. So now I'm going to share it. Yes, ma'am, please. Is it visible now? Yes, ma'am. Just Or is that. it? Yeah, it Yeah, just ma'am. let Yeah, me. yeah, It is absolutely. clear. Income tax paper is written here. This is clear. Yeah, ma'am. Please proceed, ma'am. Okay, okay. Good afternoon, everyone. Very warm welcome to your income tax paper class. So we'll try to cover the topics as it's a new system. So let's try to understand the concepts well. So when we talk about the income tax paper, so the way you have studied your accounts paper in the last session, so in the accounts paper, you used to have some format, same systems which used to be there. So when we talk about the income tax paper, so income tax paper is about that how the tax is to be charged on the income earned. So there are certain rules, and as we talk about, there is Income Tax Act 1961. So when we talk about an act, so it means that there are certain provisions, there are rules which we have to follow. So according to that, we have to do all the calculations. So when we talk about today's topic, so in today's topic, the unit 1, we have to discuss about the introduction, which talk about certain basic concepts. It's a practical paper. तो प्रैक्टिकल पेपर में हमारे क्वेश्चंस जो रहते हैं कंप्यूटेशन के रहते हैं, टैक्स लायबिलिटी के रहते हैं. So being honor students, you have to well versed with all the concepts and we have to discuss all the things. So when we talk about the basic concepts, so within basic concepts, we have to discuss what do we understand by the income, who is known as person as per the Income Tax Act provision, who is going to be known as the assessee, what do we understand by the gross total income, and how we are going to compute the tax liability. So these concepts we are going to cover in the today's lecture.
So along with that, when we talk about the basis on which these concepts are calculated, the uniformity, so we have the concept of previous year as well as assessment year. So we need to understand these basic concepts from the point of view कि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके रूल्स और उसके प्रोविजंस के हिसाब से हम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे. So these concepts, though these are theoretical concept, but generally asked in the exam. After this, इसके साथ जब हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो एक्ट के अंदर हमारे दिए होते हैं बेसिक प्रोविजंस जो हमारी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए जो एक हमारा मेथड होता है वो हमें बताता है, राइट. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनकम टैक्स रूल्स जो हमारे 1962 के रूल्स हैं. तो जिन भी प्रोविजंस में हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है या कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है, सो दीज रूल्स आर give more clarity about that. Then there are Central Board of Direct Taxes जो टाइम टू टाइम सर्कुलर क्लैरिफिकेशंस एक्सेट्रा इशू करते हैं जिसके बेसिस पे एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट या चेंजेस हमें उसमें देखने होते हैं. Then there comes Annual Finance Act. So when we say 1961 तो प्रोविजंस जो हैं आपके वो पुराने 1961 के बेसिस पे हैं. सो उस टाइम से लेके अब तक के टाइम पे एवरी ईयर इनकम के फॉर्म्स चेंज होते हैं, नई तरह की इनकम इंट्रोड्यूस होती है. तो उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए और हर साल अगर आपको पता हो तो हर साल एक एनुअल बजट आता है जिस बजट को फाइनेंस मिनिस्टर एज अ फाइनेंस बिल प्रेजेंट करता है और जब वो फाइनेंस बिल पास हो जाता है तो वो एक एनुअल फाइनेंस एक्ट का फॉर्म ले लेता है. सो ये चारों चीजें व्हेन वी टॉक अबाउट द टैक्स प्रोविजन, बेसिक मेथड, टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स और एनुअल फाइनेंस एक्ट हमें अपने माइंड में रखना होता है जब हम इनकम टैक्स एक्ट का पेपर करते हैं. सो जब हम इनकम की बात करते हैं सो देयर इज अ वेरी गुड डेफिनेशन और 2 लाइन डेफिनेशन जो पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करता है. इट सेज एनी पर्सन who has earned income during the previous year is liable to pay tax as per the provisions of Income Tax Act and tax rates given by Annual Finance Act. So as per this definition, what we have to understand is that who is a person. When the particular income is considered as the income, that when this particular term और जो भी हमारी रेवेन्यू है या जो भी हमारी रिटर्न है उसको हम इनकम कब मानेंगे, एंड अर्नड इन द प्रीवियस ईयर एंड इज लायबल टू पे टैक्स. तो टैक्स लायबिलिटी क्या होती है और क्या प्रोविजंस हमारे इनकम टैक्स एक्ट के फॉलो होंगे और हमारे क्या टैक्स रेट्स होंगे जो हमारे एनुअल फाइनेंस एक्ट के हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें इन डेफिनेशंस को समझना है. तो सबसे पहले आ जाता है कि जब भी हम एक इनकम की बात करते हैं तो वो इनकम हमारी बहुत सारे सोर्सेस से हो सकती है, बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट जैसे हम अकाउंट्स के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रखते हैं ताकि हम डिफरेंट ईयर्स के अकाउंट्स को एक साल से दूसरे साल में कंपेयर कर सकें, या उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के जो हैं सेम इंडस्ट्री में उनके अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, हमारे अकाउंट्स की डिडक्शन होती हैं. उसी तरह अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट जो हमारी इनकम है वो 5 मेन हेड्स के अंदर टैक्सेबल होती है. तो उन हेड्स को 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है
जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम house property, then profits and gains from business and profession, capital gains, and income from other sources. तो जब हम इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट कैलकुलेट करते हैं तो ये जो हमारे अलग से 5 हेड्स हैं, ये हमारे 5 चैप्टर्स बन जाते हैं कि हमने इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है। तो इन सब हेड्स को जब हम इनकम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं और टोटल कर देते हैं तो वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन आती है इनकम की कि क्या इनकम जो है एज पर इनकम टैक्स एक्ट किस चीज को हम इनकम समझते हैं। तो हमारी कोई भी रिटर्न है, कुछ भी हमें उसमें किसी भी फॉर्म में हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो हमारी इनकम बन जाएगी। तो इसके इनकम के केस में इसके अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चाहे वो लीगल इनकम है चाहे वो इलीगल इनकम है, वो इनकम कहलाएगी। अकाउंट्स में अगर आपका सोर्स पता ना हो तो आप उसको इनकम नहीं मानते, लेकिन इनकम टैक्स प्रोविजन के अंदर इवन दो आपकी इनकम इलीगल है तब भी वो आपकी इनकम मानी जाएगी। जनरली हम बिजनेस की इनकम में कहते हैं कि वो रेगुलर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर हमारी कोई इरेगुलर ट्रांजैक्शन भी है लेकिन वो हमें एक फॉर्म में रिटर्न में मिल रही है तो वो इनकम मानी जाएगी। सो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजंस इट सेज कि कोई भी एक्टिविटी करने के बाद अगर हमें कोई रिटर्न मिल रहा है, कोई रिसीप्ट मिल रही है या कोई रेवेन्यू मिल रही है, कोई रिटर्न मिल रही है तो वो हमारी इनकम कहलाएगी। तो चाहे वो लीगल हो इलीगल सोर्स से हो, समटाइम्स आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि इनकम टैक्स की रेट पड़ गई तो ब्लैक मनी हमने उसके ऊपर ब्लैक मनी कॉन्फिस्केट हो गई, या उनकी जो भी ज्वेलरी थी जिसके पेपर्स या रिकॉर्ड नहीं थे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पास रख लिए और उसके बाद फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई। तो इसका मतलब कि जो भी आपके पास है, चाहे आपने उसके पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं या नहीं किए, उससे रिलेटेड आपने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, वो still if you own those things, own those assets, all these things will be considered as income. तो अगर हम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम की बात करें तो उसके अंदर हमें सैलरी में पता है कि इफ अ पर्सन इज बीइंग एम्प्लॉयड इन वन ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटे लेवल पे है बड़े लेवल पे है, चाहे वो वेजेस मिल रहे हैं, तो इट मींस उस रिलेशनशिप में उसको कुछ रिटर्न मिल रहा है, किसी भी फॉर्म में मिल रहा है, चाहे उसको फैसिलिटीज के फॉर्म में मिल रहा है, चाहे वो कैश के फॉर्म में मिल रहा है, गिफ्ट के फॉर्म में मिल रहा है, वो हमारा सैलरी में आ जाएगा। सिमिलरली जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर हमारी हाउस प्रॉपर्टी है तो हमने अगर किसी को उसको रेंट पे दिया हुआ है तो उससे जितनी भी रेंटल इनकम आ रही है वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाएगी। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं या आप प्रोफेशन रन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको कुछ भी अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो फीस के फॉर्म में मिल रहा है, प्रॉफिट के फॉर्म में मिल रहा है, वो आपकी इनकम बन जाएगा। और अगर आप कोई अपनी पर्टिकुलर एसेट है उसको, चाहे कोई भी आपकी एसेट है, वो आप उसको एसेट को अगर सेल करते हैं तो वन टाइम ही सेल करेंगे तो वो आपका कैपिटल गेन के अंदर हेड में आ जाएगा। और कोई भी इनकम जो इन 4 हेड्स के अंदर कवर नहीं होती, तो कुछ इनकम हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ऑलरेडी स्पेसिफाई होती है और कुछ इनकम जो ऑलरेडी हमारी उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं है लेकिन वो इन 4 हेड्स के अंदर फॉल नहीं कर रही तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगी। तो कोई भी इनकम जो आपने अर्न करी किसी भी फॉर्म में किसी भी हेड में, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्सेबल होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि वो इनकम का फॉर्म जनरेट करती है, और अगर वो इनकम के फॉर्म में जनरेट हो रही है और वो इन 5 हेड्स के अंदर हम उसे इनकम को कंप्यूट करते हैं बेसिक प्रोविजन और बेसिक मेथोडोलॉजी के साथ, तो वो जब हम इन 5 हेड्स की इनकम को टोटल कर देते हैं तो वो हमारी बन जाती है ग्रॉस टोटल इनकम।
सो इट मीन्स कि जब हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात करते हैं, so gross total income means the total income earned by the assessee during the previous year. So gross total income means salary income plus income under the head house property plus income earned from business and profession plus income earned under the head capital gain plus income from other sources. तो इन सारे हेड्स के अंदर जब हम इनकम अर्न कर लेते हैं, टोटल कर देते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम की फिगर आ जाती है। तो अब इसके अंदर वी यूज द वर्ड पर्सन, एवरी पर्सन हु अर्न्स द इनकम। तो एवरी पर्सन का मतलब क्या होगा? एवरी पर्सन मीन्स कि अगर वो एज अ इंडिविजुअल अर्न कर रहा है तो वो भी पर्सन कहलाएगा। अगर वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में बिजनेस रन कर रहा है तो एक ये बिजनेस एंटिटी हो गई, तो HUF will be liable to pay tax on the income earned by them on Hindu undivided family business। उस तरह आपकी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, फर्म में आपके पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, पर फर्म जो है एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, तो वो भी आपकी पर्सन कहलाएगी। LLP, एनी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, वो भी आपका पर्सन कहलाएगा। देन इसके बाद आपका एक आ जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वो आपका पर्सन कहलाएगा। और अगर कोई आपकी स्टैट्यूटरी organization है, that is also known as person। then after that अगर कोई आपकी local authority है, वो भी आपकी एक person हो जाएगी। then अगर आपका what you call it, this is called as artificial judicial person। So, as per Income Tax Act, every person is assessee, and who is the person, चाहे वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, एक एज अ बिजनेस एंटिटी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, LLP के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मीन्स कि जैसे आप उसमें अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट करते थे जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे एक पर्टिकुलर बिजनेस को करते हैं या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करते हैं, तो अगर इन्हीं में से कोई पर्सन, नॉट नेसेसरली ओनली इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल या कोई HUF या पार्टनरशिप फर्म या LLP, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हैंड्स ज्वाइन करती है, तो वो एज अ जॉइंट वेंचर जब इकट्ठे करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो पर्सन मींस इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, AOP, BOI, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो जब इनमें से कोई, अगर खाली बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मींस कि अगर इंडिविजुअल्स ज्वाइन हैंड्स करते हैं किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बन जाएगी। और अगर वो किसी जॉइंट वेंचर के लिए अदर देन इंडिविजुअल्स ज्वाइन हैंड करते हैं तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्संस बन जाएगी, राइट? सो लेट्स मूव फर्दर टू नेक्स्ट concept, that is the concept of assessee। Next definition is the definition of assessee. As per law, every person who has earned the income is liable to pay tax।
और वो प्रोविजन क्या है, हमारे प्रोविजंस हमारे इनकम टैक्स एक्ट के हैं, और उसके अंदर जो टैक्स रेट्स है वो आपके एनुअल फाइनेंस एक्ट के अंदर है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एवरी पर्सन हु हैज अर्न इनकम इज लायबल टू पे टैक्स, तो इसका मतलब हुआ कि जिस भी एसएससी ने पिछले प्रीवियस ईयर में किसी भी हेड के अंदर इनकम अर्न करी, वो इनकम, उस इनकम पे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। अब टैक्स पे करना पड़ेगा तो वो इनकम किस किस हेड में हो सकती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आपका प्रॉफिट आया, या आपने कोई एसेट सेल करी, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कोई भी अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब हम इनकम टैक्स प्रोविजंस की बात करते हैं तो इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर हमें वी हैव टू डिस्कस कि उस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा जिस इनकम के ऊपर हमारी इनकम जो है एग्जम्पशन एग्जम्प्ट नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इनकम, so when we say that the every assessee is liable to pay tax on that income, तो उस पर्टिकुलर केस में वो assessee कहलाएगा। तो इसके अंदर हमारी डेफिनेशन आ जाती है कि एवरी पर्सन हु हैज अर्न इनकम मोर देन द मैक्सिमम exemption as per इनकम टैक्स एक्ट। इट मीन्स कि उस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगी जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से बाहर है। तो अभी हम रेट ऑफ टैक्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ इनकम जो है वो हमारा एग्जम्प्ट है। सो जब हम एसएससी की डेफिनेशन की बात करते हैं तो वी से एवरी पर्सन who is liable to pay tax or any other sum of money to income tax authorities under provisions of इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सम ऑफ मनी अगर आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को लाइबल हो पे करने के लिए तो आप एसएससी कहलाएंगे। इसका मतलब कि अगर आपकी पिछले साल इनकम थी लेकिन आपने पिछले साल टैक्स पे नहीं किया, यू आर डिफॉल्टर, और आपको इस साल उस पे टैक्स भी पे करना है और इंटरेस्ट भी पे करना है, चाहे आपकी इस साल कोई भी इनकम नहीं है लेकिन आप फिर भी एसएससी कहलाएंगे। सो इट मीन्स कि अगर आपने कोई भी अमाउंट पे करना है टैक्स का या एनी अदर सम ऑफ मनी, so you will fall in the definition of assessee. And when we use the word every person, so every person means an individual and other forms of organization who exist as a legal entity who have earned the income during the previous year. So as per this अगर हम बात करें तो assessee in default is also an assessee. तो अगर वो डिफॉल्ट कमिट करता है, पिछले साल में उसने टैक्स पे नहीं किया और एज पर इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन उसे टैक्स पे करना चाहिए था, तो वो इस साल चाहे उसकी कोई इनकम नहीं है तब भी वो इस साल एसएससी कहलाएगा। तीसरी डेफिनेशन आपकी आ जाती है रिप्रेजेंटेटिव assessee. So if a person is having the business लेकिन वो आपकी कंट्री से बाहर है और उसका बिजनेस कोई और देख रहा है, so the person who has all the responsibilities and liability to take care of the business will be known as the representative assessee. तो representative assessee वो है जो किसी और के behalf पे टैक्स लाइबिलिटी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। So if the definition I hope is clear, every person is an assessee, a definition of person and definition of assessee as well.
तो जो हमने पहले डेफिनेशन डिस्कस करी थी उसमें हमने कहा था एवरी पर्सन इज एन एसएससी हु हैज अर्नड एनी इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. सो इट मींस दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर, सो प्रीवियस ईयर की हमें डेफिनेशन अब हमें समझनी है. तो प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसके अंदर आप इनकम अर्न करते हो. सो previous year is that financial year in which income is earned. So when the income is earned, तो इसके अंदर we are not talking about the calendar year. So as per the Income Tax Act provision, previous year starts from 1st of April every year and ends on 31st of March next year. तो हमारे लिए जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है जिसकी इनकम हमने टैक्स करनी है या असेस करनी है वो हमारा है 1st अप्रैल 2019 से 31st of March 2020. So it means कि जो हम अभी वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमने इस साल की रिटर्न्स फाइल करनी है, तो जो इनकम हमने पिछले प्रीवियस ईयर के इस ब्रैकेट में 1st अप्रैल 2019 से 2020 के ब्रैकेट में हमने अर्न करी होगी, उस इनकम के ऊपर हम टैक्स देंगे. सो डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर सेज दैट द इनकम व्हिच इज बीन अर्न in the bracket of financial year the last year would be known as the previous year. So इस particular case में हमारा relevant previous year जो हम इस टैक्स के इस particular exams के point of view से बात करेंगे, तो जो इनकम हमने इस ब्रैकेट में अर्न करी that would be known as the previous year. Then it is going to be taxed in next financial year. सो टेक्स्ट का एग्जैक्ट वर्ड हमारा यहाँ पर आएगा असेस्ड, कि जो इनकम हमने पिछले साल अर्न करी तो उसके ऊपर हमारी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे दैट सैलरीज के अंदर हमें इनकम कैसे इंक्लूड कैलकुलेट करनी है एज पर द रूल्स, हाउस प्रॉपर्टी में कैसे करनी है, बाकी के सारे हेड्स में कैसे कैलकुलेट करनी है. तो जो इनकम इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर हमने अर्न करी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में असेस्ड होगी एंड दैट ईयर वुड बी नोन एज द असेसमेंट ईयर. तो असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर which is following the previous year and it starts from 1st of April every year and ends on 31st of March next year. तो इस केस के अंदर अगर हम अपने रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की बात करेंगे तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज 2019 and 20 and our relevant assessment year is 2021. तो जो इनकम हमने प्रीवियस ईयर 1920 में अर्न करी वो हमारी असेसमेंट ईयर में टैक्स होगी. इसके साथ ही आपका एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो असेसमेंट ईयर होता है it is a period of 12 months and there is no change in due date without any change in dates, right? So but if we talk about the previous year, तो previous year जो है it can be for less than 12 months. अगर किसी एसएससी की या किसी पर्सन की पिछले साल जॉब ही नहीं थी या उसने इन द मिड ऑफ द ईयर अर्निंग शुरू करी या अपना नया बिजनेस मिड ऑफ द ईयर में शुरू किया, तो उसके लिए जो फर्स्ट प्रीवियस ईयर है वो आपका लेस देन 12 मंथ्स हो जाएगा. सपोज ए ने अपनी जॉब करी स्टार्ट 1 सितंबर 2019 को, तो इसके केस में प्रीवियस ईयर विल एंड टिल 31st ऑफ मार्च 2020. तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो इस केस में हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 7 मंथ्स का हो गया. बट नेक्स्ट ईयर से अगर वो उसकी जॉब कंटिन्यू रहती है और अर्निंग कंटिन्यू रहती है तो नेक्स्ट ईयर से उसका जो प्रीवियस ईयर है वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म
previous year. Right? So if the definition comes or difference come, what is the previous year? What is the assessment year? So in that case, we have to tell the definition that previous year, the year in which the income is earned, which can be of 12 months starting from 1st of April ending on 31st of March. But in case where new source of business is being started, or the person has not earned the income in any of the months of the previous year, the previous year would be for less than 12 months. But in the coming years, it will start from 1st of April and will end on 31st of March and will be uniform previous year for all the coming years. And the assessment year is the financial year in which income earned in the previous year is being assessed, and this particular assessment year will strictly start from 1st of April and will end on 31st of March. So it will be strictly of 12 months without the change in these two dates. Also, there is, when we talk about the previous year, relevant previous year for our study purposes, so it is 2019 and 20, and the assessment year is 2021. सो इसके बाद एक आपका और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज अबाउट द डुअल रोल. दैट इज दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर जो है आपका 2019 एंड 20, इट इज प्रीवियस ईयर इन कंटेक्स्ट विद द असेसमेंट ईयर 2021. लेकिन पिछले साल भी तो हमने इनकम अर्न करी होगी, दैट इज दी 2018 एंड 19. तो उस केस के अंदर 2018 एंड 19 के कॉन्टेक्स्ट में ये हमारा असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20 बन जाएगा. सो इट मीन्स वन फाइनेंशियल ईयर इज प्लेइंग डबल रोल. जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है वो फाइनेंशियल ईयर हमारा डुअल रोल अप्लाई करता है. जैसे हमने 2019 एंड 20 की बात करी, तो वो प्रीवियस ईयर हो जाएगा इन कंटेक्स्ट टू असेसमेंट ईयर 2021, एंड यही 1920 हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा इन कंटेक्स्ट विद प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19. राइट? Then let's go further. Till now we have discussed the concept of income. We have discussed the concept of gross total income, discussed the concept of person, meaning of assessee, meaning of previous year, and meaning of assessment year. Now in continuation, we will discuss the concept of total income, that is called as taxable income, and the tax rates and the practical question most likely will carry on in the next class. So we have the concept of total income, gross total income and total income. So when we talk about the computation of total income, so what we have to do is that first we have to find out the gross total income. In the gross total income, we have income from salaries. So when we talk about the salaries, within salaries, we have basic salary, we have allowances, and we have perquisites. तो जब भी हमें कोई बेनिफिट इन काइंड मिलता है तो उसको हम perquisites बोलते हैं. So when we have these things, so within salaries हम उसके अंदर within head कुछ deductions देते हैं. So within head जब हम उसके अंदर सैलरी, हमारी gross salary आ जाती है, तो gross salary के अंदर हमने within head deductions दी under section 16 and standard deduction दी. So we arrive at the figure of income from salary, right? So first हमें income from salary का जब हम chapter करेंगे तो उसमें we will learn कि हमारी जो within head हम basic salary कैसे लेते हैं, allowances कैसे लेते हैं, बाकी सब deductions कैसे लेते हैं और कैसे हमारे पास income from salary आती है. इसी के continuation में जब हम gross total income की बात कर रहे हैं
तो ग्रॉस टोटल इनकम में हमें सभी हेड्स के अंदर जो है इनकम अपनी डिडक्ट जो है उसकी कंप्यूटेशन सीखनी है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सो हमारे पास फिगर आ गई इनकम फ्रॉम सैलरी। उसी तरह हमने कैलकुलेट की इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हमारी जितनी लेट आउट इनकम होती है वो आती है। उस लेट आउट इनकम को निकालने का एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है जो हम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सीखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। Then we have taxable capital gains and then we have income from other sources. So as per the Income Tax Provisions Act, हमें सारी इनकम को कैलकुलेट करना होता है हर हेड के प्रोविजंस के हिसाब से। तो जब हमारी पांचों हेड्स के अंदर इनकम कैलकुलेट हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास फिगर आ जाती है ग्रॉस टोटल income. So definition of gross total income is that income calculated under all the 5 heads according to the provisions of Income Tax Act. So जरूरी नहीं है कि एक एसएससी की इनकम पांचों हेड्स में हो। There is possibility कि ए जो है वो एक जगह जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी आ रही है, प्लस उसके पास एक छोटा सा एक्स्ट्रा मकान है which has been let out and he is getting the let out income also. And in case he had some old car which he has sold during the previous year, तो उससे रिलेटेड और किसी और एसेट से रिलेटेड उसको कोई बेनिफिट हुआ तो वो कैपिटल गेन्स के हेड में आ गया। सो देयर इज पॉसिबिलिटी ही इज नॉट रनिंग द बिजनेस या ही इज नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जिस भी सोर्सेज के अंदर उसकी एसएससी की इनकम होगी, पर्सन की इनकम होगी, वो हम ले लेंगे और जब हम उस इनकम को टोटल कर देंगे तो हमारे पास फिगर आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। फिर ग्रॉस टोटल इनकम के बाद इसके अंदर कुछ हमारी जो डिडक्शंस हैं वो हमारी अलाउ होती हैं एज पर दी प्रोविजंस, जिसको हम बोलते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80, जो हमारी 80C टू 80U आपकी अलाउ होती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दीज डिडक्शन, तो जब हम ये डिडक्शंस एज पर द प्रोविजन सीख लेते हैं और ये डिडक्शन अलाउ कर देते हैं तो हमारे पास आती है टोटल इनकम, और इस टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। सो ये टैक्सेबल इनकम है, ना तो आपकी सैलरी इंडिविजुअल, ना आपका लेट आउट जो रेंट इनकम है वो, बट दिस इज द फिगर, ग्रॉस टोटल इनकम भी नहीं, जो हमारी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम की फिगर आएगी, इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे और ये टैक्स जो है हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज को पे करेंगे। सो व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस टैक्स, तो ये हमारे टैक्स कैलकुलेट होगा एज पर द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू रेलेवेंट previous year 2019 and 20। तो इस टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द रेट्स गिवन फॉर द प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। तो अगर हम डिस्कस करना चाहें तो टैक्स रेट हमारे जो हैं वो टैक्स रेट हमारे डिफरेंट असेसिस के हिसाब से अलग से दिए होते हैं। तो असेसिस को हम मेनली क्लासिफाई करते हैं, जो आपके कोर्स में है वो आपने इंडिविजुअल्स का और फर्म्स का असेसमेंट करना है, जो आपको क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद लेटर स्टेज पे हम ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी सीखेंगे। तो ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जो आपने इनकम अर्न करी वो उस इनकम का सारा स्टेटस, उस इनकम की सारी डिटेल्स आपने इनकम टैक्स अथॉरिटीज को देनी है, which is known as filing of return. So every assessee, every person who is an assessee is required to file the return for the relevant previous year. तो चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो फर्म है,
चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, कॉर्पोरेट एसएससी है, एचयूएफ है, सबको अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती है एज पर द प्रोविजंस। तो जो हम टैक्स रेट्स हमें दिए होते हैं उसके बेसिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और रिटर्न में डिटेल्स देते हैं। फिर इसके अंदर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं डिडक्शंस के, एग्जम्पशंस के, then there are certain concepts which are known as we can say the filing of return के लिए हमें requirement होती है PAN number की, that is known as permanent account number which is given to each individual and organization. तो organizations के अंदर PAN numbers भी होते हैं और PAN numbers भी होते हैं जो उनकी identification होती है उनकी income को track करने के लिए। सो इन डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को कंसिडर करते हुए और हमारे एज एन एसएससी हमारे ऊपर कौन से टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होंगे दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस इन योर कोर्स देयर इज असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड असेसमेंट ऑफ फर्म्स। तो जब हम इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपका टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी आएगा कॉन्सेप्ट, एक आपका टर्मिनोलॉजी आएगी एडवांस टैक्स पेमेंट की, देन देयर विल बी वन कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो ये आपके कॉन्सेप्ट जो हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे यू विल कम टू नो। तो दीज आर नॉट एग्जैक्टली as we say that the basic concept या इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है, बट जब हम इनकी असेसमेंट करते हैं या जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या इंडिविजुअल्स की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट चाहे वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, पैन है, डिडक्शन, एग्जाम्पशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें उसमें कैलकुलेशन में हमें हेल्प करेंगे। So if we have time, so can we continue for another 5 minutes, sir? Yes, please. Am I allowed? Okay, let me discuss one small concept that is tax rates for individual assessee. For the previous year 2019 and 20. So इस केस के अंदर हम इंडिविजुअल एसएससी के जो टैक्स रेट्स है हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। One is that assessee who has attained the age of 80 years at any time during the previous year. तो इनको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। और एक असेसी जो आपका प्रीवियस ईयर में have attained the age of more than 60 years, that is called as senior citizen, and the other assessee. So whenever we are going to calculate the tax liability, so first we have to see that whether he is an individual. तो उस इंडिविजुअल की पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, फिर ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद हम देखते हैं कि विद इन हेड्स हमारी क्या डिडक्शंस क्लेम हो चुकी हैं और फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम अंडर द हेड अंडर द सेक्शन 80 हमें क्या क्या उसको डिडक्शंस देनी है। डिडक्शंस देने का मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम का वो हिस्सा जिसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, राइट। बट इसके अंदर हमारे पास जब हम इसमें बात करते हैं तो मैंने एक आपको वर्ड यूज किया था कि दैट असेसी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम which is more than the exempted income. So if we talk about the third category, third assessee, so it says कि जो हमारे first 2,50,000 है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी भी हेड से टोटल हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो हमारी किसी भी हेड में पांचों हेड से लेके हम टोटल लेते हैं, उसके बाद अंडर सेक्शन 80 डिडक्शन देते हैं। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2,50,000 तक है
या उससे कम है, so there is no tax. The tax rate will be charged as nil, right? So tax rate will be charged as nil. और अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज्यादा है तो 2,50,000 से आपकी 5 लाख तक अगर वो इनकम है, then there is the tax rate would be charged at the rate of 5%. Right? Yes, and if there is the income is from 5 lakh to 10 lakh rupees, then the income tax will be at the rate of 20%. And if the income is above 10 lakh, then the tax would be charged at the rate of 30%. So with respect to the other assessees and the practical questions on this, we will be discussing in the next class. Thank you so much, dear students.